अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जवाहर नगर में वाक़ डंपिंग यार्ड में एनर्जी प्लांट के जरिए बरखी की तैयारी जारी। स्वच्छ ऑटोस तकसीम तकरीब से वज़ीर बल्दी नबोनक्स KTR का बयान। नीलोफर हॉस्पिटल में असरी CT स्कैन यूनिट का आगाज, रियासती वुज़रा की शिरकत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। रुकन असम्बली महेश्वरम ने मीरपेट म्यूनसिपालिटी और सरूनगर डिवीजन में तरक्याती कामों का किया आगाज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर बल्दी नबोनक्स KT रामाराव ने हल्के असम्बली सनत नगर में GHMC की जानिब से स्वच्छ ऑटोस की तकसीम के सिलसिले में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के तमाम डंपिंग यार्ड में जमा किए जाने वाले कचरे से जवाहर नगर में क़ायम एनर्जी प्लांट में बरखी तैयार करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि GHMC का अमला बेहतर साफ़ सफाई के इक़दाम कर रहा है, जिसकी वजह से हैदराबाद और GHMC को एवॉर्ड्स भी हासिल हुए हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर भी मौजूद थे। హైదరాబాద్లో ఇక్కడ ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమమైనా సంక్షేమ కార్యక్రమమైనా తాను ముందుంటూ అందరినీ నడిపిస్తూ మరి నగరాన్ని అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్న గౌరవ మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవనీయులు డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీమతి శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు మన కొలను లక్ష్మీ బాలరెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు అన్న వెంకటేష్ నేత గారు, గౌరవ GHMC కమిషనర్ గారు లోకేష్ గారు, స్థానిక జోనల్ కమిషనర్ రవికిరణ్ గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న ఇతర మన బేగంపేట కార్పొరేటర్ గారు మహేశ్వరి గారు, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న స్థానిక మున్సిపల్ శాఖ అధికారులు, గౌరవనీయులైన ప్రజాప్రతినిధులు, స్వచ్ఛ ఆటో డ్రైవర్లు, స్వచ్ఛ ఆటో యజమానులు, పేరు పేరున అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. కొంత కాలంగా హైదరాబాద్ మహానగరంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారి నేతృత్వంలో స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమం ప్రారంభమైనప్పుడు మీ అందరికి గుర్తుండాలి, 2500 ఆటో టిప్పర్లు ఏకకాలంలో ఆనాడు నగరం మొత్తం ప్రవేశపెట్టి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమంలో స్వచ్ఛ తెలంగాణలో భాగంగా పాల్గొని చాలా పెద్ద ఎత్తున నగరాన్ని పరిశుభ్రం చేయడానికి, నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ముందుకు పోవడానికి వాహనాలను ఆనాడు విడుదల చేయడం జరిగింది. తదనంతరం గత 5-6 సంవత్సరాలుగా GHMC ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్, స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ ర్యాంకింగ్స్ విడుదల చేసిన మహానగరాల్లో, అంటే 40 లక్షల పైచిలుకు జనాభా ఉండే మహానగరాల్లో బెస్ట్ నగరంగా ఇప్పటి వరకు హైదరాబాదే భారతదేశంలో నిలిచిన మాట నేను మీ అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. దానికి శ్రమపడుతూ, దానికి ఉదయం 3 గంటల నుంచి 4 గంటల నుంచి శ్రమపడుతూ ఎక్కడికక్కడ నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి పరిశ్రమిస్తున్న మా నగర మున్సిపల్ సిబ్బందికి, శానిటేషన్ వర్కర్స్ కావచ్చు, మన స్వచ్ఛ ఆటో డ్రైవర్లు కావచ్చు, ఇతర వాహనాలను మెయింటైన్ చేసే సిబ్బంది కావచ్చు, మున్సిపల్ సిబ్బంది మొత్తానికి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా హైదరాబాద్ నగర ప్రజల పక్షాన అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఒక గొప్ప మాట అన్నారు, సఫాయి అన్నా నీకు సలాం అన్నా అన్న మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి బహుశా భారతదేశంలో KCR గారు. ఆయన वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए अपने अफराद ख़ानदान के हमरा चेन्नई के लिए रवाना हुए, जहां वो ज़राए के मुताबिक रंगनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने के अलावा वज़ीर आला तमिलनाडु स्टैलिन से मुलाकात करेंगे।
इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी के मसले पर उठाए गए सख्त रवैये और मौजूदा सियासी हालात पर भी वो तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन से तबादला ख्याल करेंगे। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो GO 317 और जोनल निज़ाम पर अमलावरी करने से पहले सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़िद करते हुए उनसे तबादला ख्याल करें और उसके बाद ही इस पर अमलावरी की जाए, क्योंकि इससे सरकारी मुलाजमीन को अपना मुकाम छोड़ना पड़ेगा। बी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सरकारी मुलाजमीन में सीनियर और जूनियर का फ़र्क पैदा करते हुए सियासत कर रहे हैं। बीजेपी कायद और साबिक़ रुकने पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि TRS के 20 था 25 अरकान असम्बली बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात के खदशे से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बीजेपी की मकबूलियत के खौफ से किसी भी वक्त असम्बली के इंतखाबात को मुमकिन बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि TRS बीजेपी पर धान की खरीदी को लेकर झूठा प्रोपगंडा कर रही है। మీరు దాడులు చేయమని చెప్పి అంటే ఆయన బాధ్యత కాదా యాజ్ ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులను చూసుకునే బాధ్యత ఎమ్మెల్యే పైన కూడా ఉన్నది. వారి ప్రోత్సాహంతో ఈరోజు మన ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ పైన దాడి చేయడం జరిగింది. ఈ అహంకారం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ TRS పార్టీ నాయకులు ఈ అహంకారం ప్రభుత్వంలో ఉన్నామని చెప్పి ఈ అధికారాన్ని చేతిలో తీసుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదైతే చేస్తున్నారో ప్రజలందరూ కూడా చూస్తున్నారు. ఈ తప్పుడు కేసులు మీ పైన ఏదైతే పెట్టారో తక్షణమే TRS रुकन खानसास कौंसल P राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी और बीजेपी कायदीन पर तनकीद की और इस बात का सवाल किया कि क्या बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत फ़ी एकड़ और फ़ी मौसम 5,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों के अकाउंट में ये रकम पाबंदी के साथ जमा कर रही है, लेकिन बीजेपी कायदीन TRS हुकूमत और वज़ीर आला पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में मसरूफ़ हैं। ఈ 7 సంవత్సరాల కాలంలో అనేక చర్యలు తీసుకొని సాగునీటి కోసం 46,000 చెరువులను బాగు చేసుకొని చెరువుల కింద ఉన్న విస్తీర్ణాన్ని ఒక దిక్కున స్థిరీకరణ చేసుకుంటే పెండింగ్ ప్రాజెక్టులుగా సాగదీస్తున్న గత ప్రభుత్వాల యొక్క చాతగానితనాన్ని వేలెత్తి చూపుతూ ఆ పెండింగ్ ప్రాజెక్టులన్నింటినీ పూర్తి చేసుకొని కొత్త ప్రాజెక్టులని దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఏ ప్రభుత్వము చేయని విధంగా అత్యంత పెద్ద ప్రాజెక్టు, ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రాజెక్టు అయిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కూడా 3 సంవత్సరంలో కంప్లీట్ చేసిన చరిత్ర కేసీఆర్ గారిది, TRS ప్రభుత్వాన్ని. తద్వారా ఈనాడు 2020-21లో 203.8 లక్షల ఎకరాలు సాగు విస్తీర్ణం చేయడం జరిగింది. मुकामी दर्जात के तहत मुनक़िद किए गए 6 MLC नशिस्तों के लिए रायदही का इनेकाद 10 दिसंबर को अमल में आया था, जिसकी राय शुमारी 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी और तवक्को है कि दोपहर 2 बजे तक नताइज जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने करीमनगर, आदिलाबाद, मेदक और खम्मम में की जाने वाली राय शुमारी के तमाम तर इंतजामात पाए तकमील कर लिए हैं और राय शुमारी के मराकज़ के अतराफ़ व अकनाफ दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया गया है।
हल्के असम्बली नामपल्ली में वाक़ नुमाइश ग्राउंड में चलाए जा रहे इदारे सेटविन से शिकायतें मौसूल होने पर मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मज़कूरा इदारे का दौरा किया और शिकायतों की समाअत की। सेटविन में काम करने वाली खातून ने बताया कि मजहब की बुनियाद पर इस सेंटर में लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और इस सेंटर की इंचार्ज सरिता मैडम उसकी ज़िम्मेदार हैं। मजलिसी रुकन असम्बली ने इंतज़ामिया से सिलसिले में तफसीली बात भी की और शिकायतों को दूर करने का तयख़ुन भी दिया। हमारे के साथ ये सब क्यों होना, तो सब रूल सेम होना ना। और एक बात हम लोग और सब चीज़ है, अगर पेटी से अगर काम करते हो तो हमारी सैलरी बढ़ती है, लेकिन मेरे पास अब रहा फर्स्ट सेट के बच्चे सेकंड सेट में आपको सेकंड से पढ़ लो, तो अब ये जितने बच्चे फर्स्ट में सेकंड से सर ये पूरा कॉस्ट है सर एक्चुअली क्या हो रहा है। आप लोग ये वीडियो अपलोड करेंगे। और एक बार सर यहाँ पर बहुत पार्शलिटी अनएजुकेटेड है, आप लोग हम बात करने की अनएजुकेटेड है, ये तमीज वर्ड्स नहीं है। हमको आए गए हैं मैम इंचार्ज मैम से, और अगर हम थोड़ा लाउड हो गए हम अनएजुकेटेड हैं एंड देन उन्होंने हमको खुला बोल रहे हैं कि आप किधर भी जाओ मेरा कोई कुछ भी नहीं आप कर दे दो सकता। कंप्लेन, कोई भी कुछ भी नहीं करता हमारा ये ऐसे उनके बोल रहे हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं सर। एक बात सुनो, आपका ये कोर्स way of speaking है वन क्या सेकंड, आपका कोर्स सेमेस्टर 3 मैं एग्जीबिशन ग्राउंड से बोल रही हूँ, मैं इंफिटेशन फैकल्टी हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर बहुत पार्शलिटी चल रहा, एक इंचार्ज मैम हमारे साथ हरासमेंट कर रहे क्योंकि एक मुस्लिम और हिंदू के साथ जितना भी स्टाफ है यहाँ पर पूरे हिंदू है सर, सिर्फ एक मैं यहाँ पर एक मुस्लिम फैकल्टी हूँ मैं। लेकिन मेरे साथ साथ मेरे बच्चों के साथ भी ये बोल रहे कि बुरखा निकाल के आना और एग्ज़ाम लिखना। इंचार्ज मैम है यहाँ की, सरिता मैडम है, उनका नाम सरिता मैडम है, इंचार्ज मैम है। उन्होंने बोल रहे कि बुरखा निकालना और आना, और बच्चों के कैरेक्टर पर तक बात ला रहे सर। हाँ, कौन पेरेंट्स खामोश बैठते बोलिए सर, किसी के कैरेक्टर पे अगर उंगली उठा रहे तो। और मेरे पास एडमिशन होने नहीं दे रहे यहाँ पर कि मैं अच्छा नहीं सिखाती, उसकी वजह से क्लास में बच्चे नहीं आ रहे। और अगर मैं कुछ बोली तो बोलते कि आप झूठ है, बल्कि मेरे को झूठ ला दे रहे सर। यहाँ तक कि मेरे पास प्रूफ भी है बच्चों का जो बोले वो लोग, कंप्यूटर लेना और FD लेना, लेकिन ब्यूटिशियन नहीं लेना बोल रहे साहब। तो ये कहाँ का है सर, क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है सर ये? हाँ, ये तो गवर्नमेंट का है, जहाँ भी जाते 2-2 कोर्सेज लेते वहाँ पर, लेकिन वो बोलते कि नहीं लेना बोल के। थैंक्स। और ये बुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और ये लोग यहाँ पर इंचार्ज मैडम के हाथ में है, 150 में ये सेल कर रहे बच्चों को। आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इंस्ट्रक्शन पे मैं रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, मिर्जा अहमद बेग साहब, मोहम्मद हुसैन इंजीनियर साहब और MD सेटविन, हमने आके एग्जीबिशन ग्राउंड में जो सेटविन का यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट चल रहा उसके तफसीली मायना किया है। हमारी पार्टी के सदर साहब को यहाँ से कुछ कंप्लेंट आया था कि यहाँ पर बच्चियों का जो कोर्स हो रहा है उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है, अरेंजमेंट के लिए भी ख़ास कहा गया था। तो हमने आके पूरा दौरा किया, जो भी यहाँ के मसाइल थे उसको MD साहब ने हमारी बात को ध्यान से सुना और उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए भी कहा और काम भी करने के लिए। मेन ऑब्जेक्शन ये था कि जो ब्यूटिशियन का एरिया और उसके साथ साथ कभी टाइम होता तो नमाज के लिए, ज़ोहर की नमाज के टाइम के वक्त, तो वो चीज़ के लिए भी MD साहब ने एग्री किया और नमाज के लिए कोई बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ सकती है। एक ऑलरेडी एक रूम है, उस रूम के अंदर उन लोग नमाज भी अदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कहा गया यहाँ पर जो फ्री बुक्स दी जाती है उस बुक्स को चार्ज किया जा रहा है, उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी बिठाए हैं। इंक्वायरी के अंदर MD साहब रिपोर्ट चेक करेंगे, अगर वाकई कुछ ऐसी बात है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटली जो एक्शन होता वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो मैं सेटविन MD साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने इमीडिएट न सिर्फ हमारे साथ इंस्पेक्शन में था बल्कि तमाम चीज़ों को करते हुए एक कमेटी डाल के कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से एक्शन लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
रियासती हुकूमत की जानिब से सेहत आमा शोबे को मुस्तहकम करने की गर्ज से इक़दामात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत रेड हिल्स में वाक़ नीलोफर हॉस्पिटल में सिटी स्कैन यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस तकरीब में रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव, रियासती वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ टी श्रीवास यादव, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा MLC के प्रभाकर और मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा दीगर ने शिरकत की। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि सरकारी दवाखानों में असली सहूलतों को यकीनी बनाने की गर्ज से इक़दामात जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्हें जल्द तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने गोकुल नगर मल्लेपल्ली डिवीज़न में सीवरेज लाइन के तामीरी कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अलावाज़ी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने AC गार्ड में वाक़ क़ब्रस्तान का भी मुआयना किया, जहां बाउंड्री वाल मुनहदिम हो चुकी है और बरखी का भी नज़म नहीं है। मजलिसी रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया कि क़ब्रस्तान के कामों को भी जल्द अज जल्द शुरू किया जाएगा। कॉर्पोरेशन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रंगारेड्डी ज़िले शादनगर के फारूक नगर में हज़रत अकबरुद्दीन शाह कादरी का उर्स शरीफ मनाया गया। मजलिस के मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने उर्स तक़ारीब में शिरकत की। उर्स के सिलसिले में जामा मस्जिद से जुलूस निकाला गया। दरगाह के मुतवल्ली हफीज़ सैयद अज़हरुद्दीन सैयद मुन्नू अली, मुंतकिब बादशाह कादरी और मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने उर्स तक़ारीब में शिरकत की। अता फरमा, ऐ अल्लाह इनका साया हमेशा हमारे सलाम पर कायम व दायम फरमा। ऐ अल्लाह जितने हाजिरीन यहाँ आए वाला उन सब की हाजतों को पूरा फरमा, इन्हें दिली हाजतों को पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह सारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया में कित्ते करीम करम फरमाने वाले, अता की बारिशें फरमाने वाले। हल्का असम्बली महेश्वरा, मीरपेट म्यूनसिपलिटी और सरूनगर डिवीज़न में मुतालिका रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर P सबीता इंदिरा रेड्डी ने तरक्याती कामों का आगाज़ किया। मीरपेट म्यूनसिपलिटी में 1 करोड़ 98 लाख रुपये लागती और सरूनगर में 85 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मुकामी TRS कायदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। యుద్ధ ప్రాతిపదికన రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ఇళ్లలో కూడా అంటే గ్రామాలలో ఉన్న ప్రతి ఇంటికి కూడా ఈరోజు మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. పుష్కలమైన నీళ్ళు ఊర్లలో అయితే గేదెలు కూడా కడుగుతున్నారు, అంత పుష్కలమైన నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ డిస్కషన్ వస్తున్న సందర్భంలో ఈరోజు దేశమంతా ఆలోచిస్తున్న సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట అన్నారు, దేశమంతా మనల్ని అభినందిస్తూ ఉంది, గ్రామాలలో ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నాము, మరి రింగ్ రోడ్ లోపల ఇబ్బంది ఉంటే మాత్రం మనం బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, కాబట్టి అది కూడా మీరు పూర్తి చేసుకోండి అని మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో దేశమంతా అభినందిస్తున్నప్పుడు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కూడా మన వాళ్ళు బాధపడుతున్నట్టు ఉండకూడదు, కాబట్టి ఎన్ని నిధులైనా పర్లేదు మీరు తీసుకోండి నేను మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో 1200 కోట్లు అవుతాయని అధికారులు చెప్పినారు. అంటే మిగిలిన ఇండ్లకి ఇంతకుముందు ఇచ్చిన ఇండ్లకు కాకుండా ఫస్ట్ ఫేజ్లో కొంత పని చేసుకున్నాం మనం చుట్టుపక్కలంతా కూడా, కానీ మరి మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వాలి కదా అంటున్నప్పుడు దానికి సంబంధించి కూడా ఒక ఎక్సైజ్ చేయమని చెప్తే ఒక 1200 కోట్లు
जमायतुल खुरैश हैदराबाद के अराकीन ने सदर जमायतुल खुरैश मोहम्मद सलीम पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने जमात को सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया है और मनमानी की जा रही है। मंसूर चौधरी और खालिद हाशिम खुरैशी और दीगर अराकीन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए बताया कि जमायतुल खुरैश के दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी मोहम्मद सलीम कर रहे हैं और जमात में करप्शन और धांधलियाँ जारी हैं। मज़कूर अराकीन ने बताया कि स्लाटर हाउस के सिलसिले में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया था कि वो जमात के हक़ में इसे छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और वो खुद अपनी बात से मुकर चुके हैं। उन्होंने बताया कि टेंडर्स में भी धांधलियाँ पाई जाती है और वो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। मंसूर चौधरी, मेंबर जमायतुल खुरैश हैदराबाद और एक खुरैश बरादरी की हैसियत होने के नाते मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक जमायतुल खुरैश हैदराबाद का मेंबर हूँ। ये हमारी जमायतुल खुरैश हैदराबाद जो तंजीम थी हमारे खुरैश बरादरी की फ़लाह बहबूद के लिए बनाई गई थी। ये लेकिन आज फ़लाह बहबूद के ख़िलाफ़ वर्जी होते हुए ये जमायतुल खुरैश हैदराबाद एक सियासी मैदान, सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि हमारे सलीम साहब जो है उन्होंने एक सियासतदान है, इसको सियासी अखाड़े में तब्दील कर चुके हैं। और ये जमायतुल खुरैश हैदराबाद जो खुरैश बरादरी के लिए बनाई गई थी, आज ये एक ज़ाती मिल्कियत में तब्दील हो चुकी है सलीम साहब के, क्योंकि यहाँ पे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और गैर दस्तूरी हिसाब से काम कर रही। हमारे जमायतुल खुरैश हैदराबाद का एक दस्तूर है जो हमारे बड़े बनाए थे और उसके हिसाब से हमारे को उसके तहत ही जैसो ये जमात को चलाना है। लेकिन हमारे सलीम साहब इसकी बरखिलाफ़ी हमेशा से शुरू से जो 14 सालों से इसकी बरखिलाफ़ी में ही काम कर रहे हैं और हर आए दिन अपनी जमात में मंजूरियाँ जो लेना है गैर दस्तूर के हिसाब से मंजूरियाँ ले रहे हैं और मीटिंग जो कॉल हो रही है तमाम लोग के उसको लीडर नहीं पहुंचा रहे हैं जो मेंबर्स हैं और मेरे को सस्पेंड कर रहे हैं बोल के ओरली बोल रहे हैं सलीम साहब। लेकिन हमारे दस्तूर में सस्पेंड करने का एक तरीक़ेकार है, जो तरीक़े के हिसाब से ना मेरे को सस्पेंड करे हैं ना मेरे को आज तक लेटर इशू करे हैं। सलीम साहब के ख़िलाफ़ हम लोग जो गलत काम कर रहे हैं हमारी बरादरी में, हमारी जमात चलाने में, उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाए थे। जो उन्होंने हमारे को जमात को टेंडर दिए बोल के जो आज से कुछ 1 साल पहले जो बताए थे उसमें 3 लाख का उन्होंने गाला रख के दिए थे, 3 लाख का। हम लोग वो चीज़ को उठा के बाद में ये तमाम चीज़ें वहाँ से और भी उनके खिलाफ उनके सदारत के नीचे में जितने भी जने यहाँ पे करप्शन या धांधलियाँ कर रहे हैं हमारी जमात में, उसके ख़िलाफ़ हम लोग तमाम चीज़ें आवाज़ उठाने पे हमारे को सस्पेंड बोल रहे हैं। हमारे को ना दस्तूर के हिसाब से सस्पेंड करे और दस्तूर के हिसाब से मेंबर्स बनाने का भी एक तरीक़ेकार है। हर आए दिन उनके कुछ ख़ानदान के लोगों को हर आए दिन गैर दस्तूर के हिसाब से मेंबर्स बना ले रहे हैं। हत्ता कि ये हो चुका है कि उनके पूरे तमाम ख़ानदान वाले तो मेंबर बन चुके हैं और अब बनना इनके अपना पोतरा हुआ तो पोतरा को बनाना बाकी है, नवासा हुआ तो नवासे को बनाना बाकी है। यहाँ तक कि अपनी एक सियासी जमात और अपनी मिल्कियत में तब्दील कर चुके हैं जमात को। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने ऑर्डर जारी करते हुए मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद के मुलजिम आदर्श सिंह के खिलाफ PD एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए जेल भेज दिया। मुलजिम आदर्श सिंह गांजे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस बताया गया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने एडिटर रोजनामा रहनुमा दक्कन और सदर नशीन इंडो अरब लीग सैयद वक़ारुद्दीन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि उनका इंतकाल मिल्लत का अजीम नुकसान है। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी ताज़ियती बयान में सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी और दीगर अराकीन ने कहा है कि सैयद वक़ारुद्दीन ने फ़लस्तीनी काज के लिए जद्दोजहद की और इंडो अरब लीग के ज़रिए अरब दुनिया से हिंदुस्तान के ताल्लुक़ात को भी उजागर किया। उन्होंने मिली काज के लिए अपने अखबार को वक्फ कर दिया था। फोरम के ज़िम्मेदारों ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। लालागुड़ा पुलिस ने विजयपुरी कॉलोनी में जुए के अड्डे पर धावा करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार किया। मुसद्दिक़ इत्तला पर पुलिस ने यह कार्रवाई की, जहां 1.25 लाख रुपए की नव रकम, 4 कारें, 2 बाइक्स और 7 मोबाइल फ़ोन्स भी गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से जब्त किए गए। जबकि लालागुड़ा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया।
नाचारम पुलिस और एसओटी ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए खैबागिरी के अड्डे को बेनकाब किया है। पुलिस के मुताबिक सावरकर नगर में मुसद्दिक़ इत्तला पर अपार्टमेंट पर धावा किया गया। इस धावे के दौरान एक खातून और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया है। इस अड्डे के ऑर्गेनाइज़र और दीगर अफराद का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। अस्सी साला मोहम्मद अब्दुल सत्तार साकिन हसन नगर 11 दिसंबर से लापता बताए गए हैं। इस सिलसिले में उनके फर्जंद ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई है। मोहम्मद अब्दुल सत्तार का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और इससे कबल भी वो 3 या 4 मरतबा लापता हो गए थे। अगर किसी को नज़र आ जाएं तो ख्वाहिश की गई है कि मोबाइल नंबरात 9490617194, 8332981182 या फिर 9381317852 पर रब्त किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जवाहर नगर में वाक़ डंपिंग यार्ड में एनर्जी प्लांट के जरिए बरखी की तैयारी जारी। स्वच्छ ऑटोस तकसीम तकरीब से वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR का बयान। नीलोफर हॉस्पिटल में असरी CT स्कैन यूनिट का आगाज, रियासती वुज़रा की शिरकत। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। रुकन असम्बली महेश्वरम ने मीरपेट म्यूनसिपालिटी और सरूनगर डिवीजन में तरक्याती कामों का किया आगाज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।